Jai Gurudev, everyone. So how will I proceed is I'll mute everyone for now, and we'll have Q&A after the end of session. So Jai Gurudev again, everyone. My name is Pandit Sanjeev Kumar Srivastava, and I welcome all of you in this intro talk of how to make perfect predictions through Nadi Astrology. So first of all, we have to understand what is astrology. Jyotish hai kya? So I'll mix both Hindi and English so everybody can understand. Okay, is that okay with everyone? Right? Okay. So Jyotish kya hai? What is Jyotish? See, astrology is in simple words, astrology is a GPS for all the life events. Whatever events you have in the life, from breathe in to breathe out, life is full of events. Either it is a birth of a child, either it is all the sanskaras, either it is, education, either it is career, marriage, relationship, everything, travel, settlement, all the life is full of so many events. Now, how you navigate skillfully through all these events, that is where Jyotish come into picture, that how skillfully you can use Jyotish, for the benefit of the mankind. How we can use Jyotish in your daily life to improve your life. And Jyotish does not have Jyotish is of two types or many types, or I would say, there are many branches of Jyotish. One is Parashri Jyotish, one is Nadi Jyotish, one is Jaimni. There are so many variations. Now, as we understood, Jyotish is basically, GPS for life events. Now, the question comes, what is the difference between, the traditional Parashri Jyotish and Nadi Jyotish? See, both are good. There's nothing that one is inferior, one is, better. Both are good. But, everything has their own advantage. But if you talk about the predictions, then there comes the role of Nadi Jyotish. Now, if we talk about the history of Jyotish, Jyotish started himself by the timelines of the timelines, the Mahakal, Shiva himself. That is it. So Jyotish is as old as is. There is no, you can say it is 5,000 year old, 10,000 year old. It is much, much older than what you can imagine, And if you see many of the Vedas, like Krishna Yajurveda, many of the Vedas have the mention of many of the nakshatras. And if you see ancient rishis used to see nakshatras and used to predict the future or tell the future. Now, the first, I would say, the knowledge after the timeline himself was given to all the rishis, all the Sapt rishis. And Parashar Ora Shastra, you might have heard, Parashar rishis, the originator of, you can say, Vedic astrology or Parashri astrology, is written by him. तो पराशर ऋषि ने जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखा, और फिर बहुत सारे और भी ऋषि आए, उन लोगों ने अपना अपना वर्जन लिखा. उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जो लिखा वो
ऋषि ने, आई वुड से दिस, भृगु ऋषि ने नक्षत्रों के ऊपर बहुत लिखा। देखो भृगु ऋषि ने जो लिखा उसको हम बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अब नाड़ी भी कई प्रकार की होती है, आपने सुना होगा, you might have heard, the palm leaf nadi, where all the things are written in the palm leaf. सब जो है palm leaf में लिखा हुआ है, but that is one form of, that is called, वो अगस्त ऋषि ने लिखा। जो पाम लीफ में है वो अगस्त, वो लीनिएज है अगस्त ऋषि का, बट जो नक्षत्र बेस्ड है वो है भृगु ऋषि का। तो आपने देखा होगा, आप जाते होंगे साउथ में, पाम लीफ में सबका भविष्य लिखा हुआ है, वो जाते हैं, आप आपका थंबप्रिंट लेते हैं और वो सब बताते हैं। तो वो भी एक एस्ट्रोलॉजी है, फॉर्म एस्ट्रोलॉजी है, बट उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको पास्ट का बताएंगे, प्रेजेंट का कुछ बताएंगे और फ्यूचर का बताते हैं, तो वो भी एक है। बट अब प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसमें बहुत प्रिसाइज इवेंट को जानना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं आजकल, तो गूगल देवता है, इफ यू कैन रिसर्च डू ऑन समथिंग देन यू विल नो कि जो पाम लीफ वाले में वो थोड़ा पास्ट का बहुत अच्छा बता देता है, पर फ्यूचर का थोड़ा 50-50 रहता है। So I'll speak in both Hindi and English, so don't worry about it. Okay, I'll speak both Hindi and English. So in the palm leaf, you used to see, give the thumb impression, and then the person used to interpret the things, right? And the past is known very accurately, mostly accurately, but in future it is like 50-50, and it is very bigger picture of the life. It is very difficult to precise the event or pinpoint the event. Now when it comes to nakshatra, which is written by Bhrigu Rishi, there are lots and lots of nadis. Like there are more than 150 nadis, Dhruva Nadi, Sthir Nadi, Shiv Nadi. There are a lot of nadis. But the version of Nadi where it is based on nakshatra, that is the most powerful one. See, I have experimented on various nadis, Bhrigu Nandi Nadi and all, there's various versions of the Nadi. I've seen the most accurate one, जो सबसे accurate है, वो है Nadi Nakshatra, because all the predictions are based on nakshatras and their lords, right? So the difference between Vedic astrology and Nadi astrology is, I would say, although they both are good, but the difference between, like, I'm a technology person. I used to code, I used to do coding, as a software engineer, and later management also. And now I am decoding life, right? From coding to decoding life, and using the management skill to, coach the people and to upgrade their life and skills. So, the nakshatra version is very, very powerful. The nakshatra lineage or the branch of the Nadi astrology is very powerful. So both are good. Vedic astrology is more of giving you information on the planets, giving information on the rashis, the tattva, the elements, and there's a different way of prediction. Okay, but if you talk about any of the astrologers, maybe who's practicing for 25 years, 30 years, nobody will say that, through use of only Vedic astrology, you can predict more than 50-60%. Maybe a rare one, maybe 65%. Unless the person is using the sutras of Nadi astrology, they can't go beyond that. That is astrologer's view, not my view. I've asked many astrologers. They know it is impossible to predict, more than 60% or 65%. Rarest of rare can go beyond that, right? And if somebody is predicting beyond that, it is not, it is some, some kind of fraud. They used to say, because, people who know Nadi astrology is, I would say, less than 1% in the world, less than 1%. And this is the most accurate form of astrology, I would say, for use to be of use in the prediction. So if I talk about, difference between Vedic astrology and Nadi astrology,
I say it is like 2G technology and maybe 6G or 7G. That is the kind of technology difference. So one of my students said it is a modem versus 5G or 6G. So I will still say it is 2G technology and 5G technology. You can see what is possible in 2G and what is possible in 5G. Right? You all are very smart people. I don't need to explain that. So that is the kind of difference you have. Why is the difference? We'll talk about it. We'll talk in detail. So both are good. It is important to know both Vedic astrology and Nadi astrology, both. But if you are looking to be an astrologer to whom people can come and ask when I'll get the job, when I'll get married, what is my career, how is my finances, then telling through Nadi astrology is very, very easy and very, very accurate. If you go to see my motto, my punchline is, learn Nadi astrology and make yourself from zero to hero. From zero to hero. Why I say that? Because no other technology in the whole universe can make you learn so much of perfection within just 6 months. Within just 6 months, you learn at least an accuracy of 85 to 90%, at least. And this is very powerful. It has never happened in past, like maybe 200 years or 500 years. It has never happened. Earlier people used to know nakshatra, then he used to predict. If you see many rishis, or if you, Google or research on some, like I mentioned one Krishna Yajurveda, there were a lot of mentions of nakshatra where, and people who knew nakshatra were able to predict even the day-wise, date-wise, when the rain will happen, when the war will happen, all those things. But it is all based on nakshatras. Planet and Rashis came much later, I would say. That their popularity came much later, I would say this. The last 200 years, I would say this. Earlier people, or 300 years maybe. Earlier people used to, there was a mechanism. Why it was not popular? Why only few people know? You might be wondering why only few people know, less than 1% people know Nadi Nakshatra. It is because the calculation earlier was very complex, very, very highly complex. So it was not easy to calculate everything. While with the use of technology and software, now it is very easy. You don't have to do any calculation. The software will calculate everything. You have to just focus on interpretation, what this combination of energy means. That is what the total game is. So you don't, आपको चिंता नहीं करनी है. देखो हिंदी वाले से in Hindi. So you don't have to, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा. मतलब क्यों पॉपुलर नहीं है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थी. तो वो पहले के जमाने में करना थोड़ा मुश्किल था. जब से कंप्यूटर आया और ये सब चीज आई तो इजी हो गया. All the, obviously, much earlier there might be some techniques through which they used to do, but now if I see of last 200-300 years, very few people have heard Nadi Nakshatra. Very few people. You might be knowing Nadi, the thumbprint one, but Nadi Nakshatra, very few people know. And if you go to Facebook or Insta, I would definitely say research, and you will hear all the students' view, you will know that in 6 months, they are predicting like 85-90%. It is that accurate. Why it is? So let me explain that. See, in Vedic astrology, you see the planet, you see the Rashis, you see the houses, you see the aspect. If you have some knowledge of वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको कुछ नॉलेज है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या करते थे, आप हाउस देखते थे, प्लैनेट देखते थे कि इस हाउस में, ये घर में ये प्लैनेट बैठा हुआ है, इसको ये एस्पेक्ट कर रहा है, ये दृष्टि में है, ये ट्रांजिट है, ऐसे करके आप उसका इंटरप्रिटेशन निकालते थे. सिर्फ प्लैनेट और राशि के बेस पे मेनली अगर देखा जाए, और एस्पेक्ट मिला के, यू ओनली गेट दैट मच ऑफ इंटरप्रिटेशन. बट प्लैनेट्स इज द वीकेस्ट लिंक. प्लैनेट जो है, if you see the whole energy of planets and nakshatras and the lords and deities, planets is the weakest link. जो planet बोलता है
वो हार्डली कभी होता है, 50% टाइम होता है, 50% टाइम नहीं होता है। तो भाई किसके बोलने से किसके चलता है? जैसे घर में होता है ना, घर में किसका चलता है? वाइफ का चलता है, राइट? उस मेजॉरिटी आप ये समझ सकते हैं, जैसे जो जो शादीशुदा है वो ज्यादा समझ पाएंगे। तो ऐसे ही जो ज़ोडिएक है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, उसमें किसका चलता है? नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड्स, जो नक्षत्र है। तो अगर नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड अगर कहेगा कि ये इवेंट होगा, इस बंदे का इस टाइम में शादी होगा, तो वो होना ही होना है। और अगर सिर्फ प्लैनेट कहेगा और नक्षत्र मना कर देगा, तो वो नहीं होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ द प्लैनेट सेज okay, this event will happen, but nakshatra and nakshatra lord say no, it will not happen, then it won't happen, no matter what happens, no matter whatever you can do, because nakshatras are more powerful. So what happens is, in Vedic astrology we learn planet, aspect, rashi and everything. In Nadi astrology you take care of all these things, planets and where it is sitting and everything, but then you go to nakshatra, the second level. Then you go to nakshatra lord, you combine the energies of all three and then do the prediction, which is not possible in Vedic astrology. Simple as that. Just not possible. You might be knowing moon nakshatra or lagna nakshatra, that's all. People in Vedic astrology will tell you only those two things. But nobody will go to each planet nakshatra and each planet lords and tell you calculate the total energy and tell you that this event will happen. So in listening, you might be feeling a little complex, but it is very easy to see the energies. It is very, very easy. It is like that. If you know the counting from 1 to 12, you can learn the astrology. That easy. It is that easy. You just have to understand how it is interpreted. उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, उसको समझा कैसे जाता है, उसको बोला कैसे जाता है, वो आपको समझना है, और वो आपको परफेक्शन दिला देता है किसी भी प्रेडिक्शन में। और देखिए जो भी प्लैनेट है, राशिज है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की चीजें हैं ना, वो तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए कि वो सीखेंगे। वो अगर जिसको जीरो आता है, जिसको कुछ नहीं आता, आई हैव मेनी वीडियोज आई कैन शेयर विद माई स्टूडेंट्स एंड दे लर्न दैट। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आपको आ ही जाएगा, और इस बार तो बॉन्जा है, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखेगा उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री है। Earlier I used to teach Vedic astrology and Nadi astrology separately. अभी मैंने combine कर दिया. So they both are, you get to know both, but you go more detail in Nadi astrology because that is what help you. See, if you go to some astrologer and he tells you story for past 30 minutes and 45 minutes, but he didn't tell you how is your finance and which profession you should go or when you will get the job, what is the use of that? You tell me. Is it useful? You tell me. Is it useful or not useful? Not useful, right? Because we don't believe in stories. We don't have to listen to the stories. You simply tell me what profession is good for me or when I'll get the job. When the person is in trouble, he wants to know that. And if you build all the stories, this is Jatak, this is native, this is what, and you don't tell correctly, it's of no use to me. I see common man problem. So that's why how the Jyotish, the faith in the Jyotish got little diminished in last many 50, 100 years. Because, through Vedic Jyotish, which was more popular in India or across world, people were not been able to. Not everyone can be so perfect and predict. Maybe there are few exceptional astrologers also who have done exceptionally well in Vedic Jyotish. But I tell you, they have used nakshatra. They have used the power of nakshatra. Directly or indirectly, whatever may. Right? So if one has to go to the accuracy of 85, 90% or maybe beyond that, beyond is your practice, your intuition. I do teach how you predict. It's like if you go to my Twitter, Sanjeev_Astro, if you search that, there are a lot of predictions. And I would say more than 90, 95%, maybe not 90, in fact, 95, 96%, more than that predictions are accurate. Maybe 3, 4% I might have done some mistake, knowingly or unknowingly, or maybe through whatever reason. That is separate. But, because sometimes when you are biased, you do tend to do some mistakes. So if you see, it is all based on nakshatras and Nadi astrology.
So not less than 95% of my predictions are, you know, like 95% of the predictions are right. That is what I am, more than 95%. I think if any of my students or anybody who's watching me on Twitter or, you know, researching me on Twitter or following me can vouch that, or you yourself can go and see. And sometimes even date is also mentioned. And whosoever takes, so there is a technology called Prashna also, Prashna Jyotish, where you know the life events. You go beyond the life events actually. So what will happen in the world, or who is the party coming into election, who is winning, who is losing. A lot of things come. Yeah, sometimes you do tend to do mistake, but I would say above 90%, 95% you are accurate. If you are analyzing it correctly. If you are missing some points, you are biased, then you tend to do mistake. That's why astrologers should not look at their own chart. They should consult some other person, right? Or you should not be, you know, doing your thing which is for yourself, which is, you know, you might get biased opinion. So I was sharing that, मैं आपको शेयर कर रहा था कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अच्छा पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है. देखिए मैंने बहुत टाइम बता रहा है, माय फादर वाज एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आई आल्सो डू न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग. बट क्या है कि बहुत देखा, बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, पर मुझे इससे अच्छा कोई टूल मिला ही नहीं, इससे परफेक्ट कोई टूल मिला ही नहीं. 90% तो आप कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं. 10% बचा है, उसमें आपका इंट्यूशन काम आता है. योर इंट्यूशन वर्क्स. So you have to use intuition. I tell you to technique and all those things, how you can improve and increase and all those things. So intuition से कैसे आप, you know, कर सकते हैं और फिर उसको validate कर सकते हैं ज्योतिष से, right? So there are a lot of do's, don'ts and everything which we go through in all the 6 months course. और इसमें कुछ नहीं है, इसको 6 महीने में आप जो है ना, you become a person who can guide people. You can see, I would say all the astrologers, you know, in fact all the doctors, all the life coaches, you know, they should have a knowledge of Nadi astrology, you know, because if you are a life coach, if you are a, you know, true doctor, you know, just by seeing the chart, you will know this, you know, your things become so clear and so precise. And rest, obviously, you use the scientific tool of testing and everything. So we cover all the topics, you know, career, finance, health, marriage, relationship, travel, settlement, litigation, you know, all the remedies, everything is taught in the 6 months. And it's just 2 hours per week. I think right now I've decided Saturday morning, something like that, 7 to 9 a.m. So it is like 2 hours per week, just 2 hours. And you know, your syllabus is covered in less than the time which is given, and then you practice, because practice is more important here. If you don't practice, you can't. And in 6 months, I tell you, I don't think so anybody else in the universe is doing 400, 500 charts. I have not heard. But we at Institute of Nadi Astrology and Vastu, we do minimum 400, 500 charts in the matter of 6 months. Yeah, you do get extra classes and everything. So you practice more, because the key is, if you don't practice, you won't be reaching the 90% accuracy. So the key is practice. And I personally take hundreds of charts and give homework, do cross questioning, you know, all those things happens in the class. So you are able to do perfect predictions. So I say in Hindi कि 6 महीने का कोर्स है, 2 घंटा, 2 hours, 2 घंटे हर हफ्ते हैं, और आप 2 घंटे हर हफ्ते में आप खूब प्रैक्टिस करते हैं. समझ लीजिए आप आधे टाइम में ही कोर्स खत्म कर लेते, फिर आप प्रैक्टिस करते, बिकॉज प्रैक्टिस द की. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा. अगर कोई सोचे मैं ये कोर्स 2 महीने में करा दूं, 1 महीने में करा दूं, देखो 1 महीने में भी करा सकता हूं, बट उसका फायदा नहीं, कोई यूज नहीं है, यूजलेस है वो.
3 महीने में करा दूं, ना ना ना, ये है मेहनत का काम। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये 6 महीने आपको लगाने ही पड़ेंगे इसमें। 6 महीने नहीं लगाओगे तो कच्चा घड़ा जैसे होता है ना, फूट जाता है, वैसे वैसे बन जाओगे। ना इधर का आएगा ना उधर का आएगा, तो फायदा नहीं। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन है, कभी सोचा कि मैं क्या पढ़ी प्रिडिक्शन कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, क्या मेरी प्रिडिक्शन सही होंगी, अरे मैंने तो सीखा था 6 महीने का कोर्स, साल भर का कोर्स, मुझे तो आया नहीं समझ में, भूल जाइए। यहाँ तो गारंटी मैं लेता हूँ आपसे कि 6 महीने में मैं आपको एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, बना के छोड़ूंगा, वो बात अलग है। आप 6 महीने लो या साल भर लो, वो बात अलग है, बट 6 महीने में बनाते। देखो आज तक का रिकॉर्ड तो यही रहा है कि 6 महीने में लोगों ने बहुत अच्छी, बट ओनली कमिटमेंट आई नीड इज यू हैव टू अटेंड माई क्लासेस। हाँ, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, एक आध दिन कभी नहीं हुआ, कोई क्लास मिस हो गई कहीं, कुछ बात है, रिकॉर्डिंग से देख लीजिए। बट आपको करना है क्लास रेगुलरली। जितना आप रेगुलर रहेंगे क्लास में, उतना परफेक्शन आपको आता रहेगा। तो अगर आप रेगुलर रहते क्लास में, एक आध दो मिस हो गई कोई बात नहीं, कभी कोई इवेंट हो गया, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, रिकॉर्डिंग्स रहती हैं आपके 6 महीने क्या 9 महीने तक रिकॉर्डिंग रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये रहता है कि आई वॉन्ट टू मेक एवरी वन, माई मिशन इज टू मेक, टू हैव एस्ट्रोलॉजर, वन एस्ट्रोलॉजर एवरी होम इन द होल वर्ल्ड। तो बहुत बड़ा मिशन है, तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो क्या चाहिए भाई, पहले आप नादी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे क्या है, हम आपको टीचर भी बनाएंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप भी पढ़ा सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा, साल भर 1.5 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, पर हाँ कर सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे कई स्टूडेंट तो अब टीचर बनने वाले हैं, जल्दी आप देखेंगे, कुछ कुछ टाइम में, कुछ समय में, ज़्यादा नहीं। तो टीचर तो चलो आगे की टाइम लाइन है भाई, ये प्रोग्रेसिव पार्ट है। पहले आप सीखो, पहले आप खुद एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो। जब आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे तो उसके बाद पढ़ा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका मन है पढ़ाने का, तो इंटरेस्ट है, तो नहीं तो आप करिए, कंसल्टिंग करिए, लोगों को गाइड करिए, दैट इटसेल्फ इज फुल टाइम जॉब। खूब करिए पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। और 6 महीने में आप सोचिए, जिसको अगर एज ए प्रोफेशन लेना है, मेरे स्टूडेंट आज के टाइम में 3100 चार्ज कर रहे हैं। पहले फ्री में करते थे पहले फ्री में करते थे, थोड़े टाइम जब कोर्स खत्म होने लग गया, तो कोर्स खत्म होते होते ही चार्जिंग शुरू कर दी, तो अपना एक करियर भी रेडी हो गया। देखो प्रिडिक्शन तो मैं 2 महीने में सिखा देता हूँ, उसके बाद क्या है, लोग जो आते हैं 3 महीने में सिखा देता हूँ, उसके बाद जो आते हैं आप प्रैक्टिस करते हैं, यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, you learn prediction in 2-3 months, then you do a lot of practice. The same for you, same you have predicted, they come back again and again and again. That is how, and I enable you and I help you to grow your network. How you can grow your network, how you can reach out to people, how you become. So my aim is to make you astrologer. My aim is not to just teach you astrology. There is a sea difference between teaching an astrology or making you learn astrology and making you an astrologer. है कि नहीं बताइए? बहुत लोगों ने बहुत चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एंड बिकमिंग एन एस्ट्रोलॉजर इज ए सी डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर। लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोग मिलेंगे आपको जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं, पर कभी किसी को गाइड करने का उनका नहीं हुआ, पढ़ के छोड़ भी दिया उन्होंने, हार गए, बोले कि नहीं अब तो नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी, बस का नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिसर्च करके, पढ़ के, हार के, थक के, मैंने कोई बात नहीं, ये कोर्स कर लो, आपको नहीं आए तो मेरे को बताना। नाउ दे आर प्रेडिक्टिंग लाइक 85-90%, मोर देन दैट। सो मेरा पर्पस है कि पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव के लाखों करोड़ों डुप्लीकेट्स हो जाए नॉलेज वाइज में, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैं ही को, मेरे को ही नॉलेज हो, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। क्या करना है, एक दिन तो मिट्टी में जाना है शरीर, नॉलेज रख के क्या करना है, नॉलेज बांटना है। तो जो मेरे को मिला है मालिक से, भगवान से, गुरु से, वो सब बांटना है। देखो सीखा तो मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों से, पर असली आती है तभी जब आप पे कृपा होती है। तो मालिक की कृपा हुई
तो एस्ट्रोलॉजी में जिसे कहते हैं 4 चांद लग गए। ठीक है, तो ऐसी कृपा आप पे पर बरस रही है, तभी आप यहाँ आए, देन ओनली यू आर लिसनिंग टू दिस टॉक। तो आप ज्वाइन करिए, और बहुत इजी है, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो आप सबको फ्री में मिलेगा। तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज होगा, नाड़ी का भी होगा, पर मैं आपको बताऊंगा कहाँ लिमिट करना है, कहाँ करना है, क्योंकि ज्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने से फिर सब गोल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता नाड़ी। तो खिचड़ी नहीं बनानी है हमें, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, बट हाँ कहाँ कितना पढ़ना है दैट आई गाइड। मतलब नॉलेज वाइज जो सीखना है, देखो वो नॉलेज वाइज सीखोगे, आपको नॉलेज भी रहेगा, पता भी रहेगा सबके बारे में, और परफेक्शन भी कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ ज्ञान देने से बात नहीं चलेगी। आप देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे आते हैं ज्ञान देने वाले, और बहुत टीवी में भी बहुत सारे आते हैं ज्ञान देने वाले, वो ज्ञान ही देते रहते हैं। अगर पूछो कि भाई 90-95% प्रेडिक्शन सिखा दोगे, तो जवाब नहीं होता। समझ नहीं बात, तो सबका अपना अपना है, कोई बात नहीं, वो भी अपना सीख रहे हैं, अपना कर रहे हैं। बट क्या है कि अगर बात करी जाए, इफ यू रियली वांट टू सी एंड लर्न astrology to help people, then there is nothing better than Nadi Nakshatra astrology in the whole universe. I can tell you that. कोई ऐसा माध्यम है ही नहीं। हमने हजारों एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन कर लिया, सब देख लिया, सबकी प्रेडिक्शन देख ली, सबको समझ लिया, हर तरह की विद्या में डिटेल में भी गए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से देखा, पढ़ा भी, खुद भी चेक भी किया, क्रॉस चेक भी किया, वैलिडेट भी किया, नहीं समझ में आया, लगा कि भाई इससे अच्छा कोई टूल नहीं है। ठीक है, तो हम आपको ये बोलेंगे कि भाई देखिए, ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं इसलिए आपको लिंक मिला है, आप मेरे ग्रुप में हैं आई थिंक, तो या फिर मेरा नंबर आपको पता ही होगा। वैसे ग्रुप पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप में बिल्कुल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें सारा डिटेल है, गूगल फॉर्म है, सारा इन्फॉर्मेशन है। और किसी को अगर प्रॉब्लम है कि भाई मैं पैसा एक साथ नहीं दे सकता, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वेरी क्लियरली कि भाई ये नॉन रिफंडेबल फीस है। ठीक है, रिफंड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिर वो कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं है, वो गलत चीज़ है। तो ये नॉन रिफंडेबल है, पर हाँ आपको वर्थ पूरा मिलेगा, ये गारंटी मेरी। आपको एस्ट्रोलॉजर मैं बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी। ये गारंटी कोई नहीं देगा। कोई आपको गारंटी दे दे, तो ऐसा बोल दे लाइव में, तो ये तो लाइव जा रहा है ना, कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, आप मेरी क्लास अटेंड करिए और आपकी प्रेडिक्शन कम से कम 85-90% मिलेगी। मेरे को बताएगा, मुश्किल से 2-4-10 एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे पूरी दुनिया में, 2-4 ही मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इतने लोगों को पढ़ा दिया ना, अभी बहुत लोगों को पढ़ा दिया। आई हैव स्टूडेंट्स इन मोर देन 50-60 कंट्रीज, हजारों हो गए हैं अब तो। और सबके फीडबैक है, बहुतों के फीडबैक है। अभी तो मैं कितना पोस्ट करेंगे, वीडियो कितना डालेंगे, और इतना फीडबैक है कि, और सबका एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि किसी को कुछ नहीं आता था, जीरो थे, तो ऑल वर जीरो, एंड फ्रॉम जीरो दे बिकम अ हीरो। अर्लियर आई यूज्ड टू टीच वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेपरेटली, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करके लोग हार जाते थे, बोलते नहीं अब तो नहीं होगा, इट विल नॉट बी, सो कैन यू रिपीट इन हिंदी? अभी तो हिंदी में बोल ही रहा था। English, okay. So what I was saying is कि you will not find any person, you'll rarely find, मतलब maybe 2-3-4 astrologers in the whole world that can tell you I'll make you astrologer with more than 90% of accuracy or 85% of accuracy. You'll not find. I have not seen, maybe 1 or 2 in 6 months, that also in 6 months. Not find, मुश्किल है। All will give you knowledge, all will teach you prediction, पर प्रिडिक्शन बढ़ाना, बताना, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना और एस्ट्रोलॉजर बनाना, दोनों बहुत डिफरेंट स्किल है। ठीक है, तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, you will very rarely find people who can make you astrologer with
accuracy of 85-90%. And there are very few Nadi astrologers in the whole world. I'll tell you, less than 1%. And we have to make this to at least 50%. At least. So there's a lot of scope. People who will learn Nadi astrology in future, they will be in high demand, I tell you. Because they will be able to predict everything. And what is the next 10 years, 15 years? Lot of volatility, lot of things, lot of plus minus in the whole world. So people want to see guidance. What is happening with my this, that, so many life events. See, next 15, 20 years is lot of plus and minus in the whole world. So a lot of people are required who can be life coach, who can be astrologer, who can be guide and help people. And astrology is a tool to uplift people's mind, people's, the whole thing. So it is a kind of good thing also. It is seva also. It is not just behind you are doing just for money. No. It's a way to earn money. That is one part. But it is seva. Seva is the most valuable thing. See, there are 3 reasons for miseries in the life. 6, 8, and 12. 6 is disease, debt, litigation. 6 is seva also. If you do seva, you get rid of all disease, debt, and litigation. 8 is obstacle, insult, misfortune. And 8 is, pranayam, yoga, padma sadhana. Padma sadhana is also 8 hours. You do obstacle. Padma sadhana, you get rid of obstacle. 12th is loss, expenditure, outflow of money. And 12th is, the silence course or advanced course from art of living also. Or any other, course. But yeah, that is what I know, I will tell. Because that I have seen most powerful. Where you do long meditation and, and you are under the guidance of the enlightened Guru. So these are the 3 energies. So money is just a one part. You might not be needing money. That's okay. As a seva, it's a very good tool. Between friends and family, if you are a guide, very good tool. As a professional career, somebody is there. Many people I see star chart, they're not good in, office work or this thing. They are good in only in occult, means yoga, pranayam, astrology. So for them, it's a good career. So you can do excel in that, or you can do part-time, you can do full-time. It is all up to you. But if you know the timelines, I'll tell you, astrology increases your wisdom. It is a tool, or it is a guide, or I'll say it is a big milestone on the path of enlightenment. It is that big. It is not something. And I tell you one more thing. This is a very big statement, but with my experience, I can say that. Because once you know your stars or somebody's stars, you'll just, your total shift will happen in your mind. And you will see things happening in that way. And then you will realize the truth. They are just a Katputli here, nothing more than that. Everything is happening as per the timeline. Yes, you can move few things. आप कुछ चीजें हटा सकते हैं, move कर सकते हैं, but कुछ limit तक है. And कुछ चीजें हैं, obviously you can do with the grace of master and all the remedies and everything. You can do certain extent. But then it really, I tell you, my student perspective, a lot of my students' perspective have changed for the life, and they have become a better human person, better human being. तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है ना, उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जरूरी है. It's just not seva, just not earning money. If you want to become a better person, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप डिवोटी हो तो टीचर जरूर बनो, ठीक है. तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, अगर आप यू वांट टू बिकम ए बेटर पर्सन, पर्सन विद विजडम, पर्सन विद a lot of depth in life, you have to learn astrology. ज्योतिष सीखना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो कोई चारा नहीं है. तब आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हो एक तरह से. पता है ये ऐसे होना है, इसको ऐसे होना है, इसका ऐसा होना है, और इसको हम ऐसे नेविगेट कर सकते हैं. यू गेट ऐसे सब. भाई जैसे गूगल ने कितना लाइफ आसान कर दिया. पहले 10 लोगों से पूछते थे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कितना आसान कर दिया. सब शॉर्टकट बना दिया गूगल मैप ने. कहीं पहुंचना है दुनिया में, गूगल मैप, डिस्टेंस है, ये है, वो है, ट्रैफिक है, जैम है. तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही. तो अभी नेक्स्ट जो है 25 साल जो है,
वो ज्योतिष क्रांति के होने वाले हैं, समझ लीजिए। जैसे योगा की क्रांति हुई ना पिछले 10 साल 20 साल में, जैसे कि योगा योगा पहले कौन जानता था 20 साल 30 साल पहले, ये बताइए मेरे को, कौन जानता था? योगा योगा वाज ए टैबू। योगा जो करता था बोलता था भाई ये तो बताए साधु का काम है या इधर काम है, लोग डरते थे। कॉमन मैन के पास योगा नहीं था आज से 30 साल पहले 35 साल पहले। अगर आप देखें ये लास्ट 15-20 साल में, ड्यू टू ऑब्वियस ऑल आर पायनियर्स एंड देव का एफर्ट और भी बहुत लोगों का एफर्ट से सब योगा इतना पॉपुलर हो गया। तो उनका ही ब्लेसिंग है। मैं तो ये कहूँगा कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि भाई जो है पूरी दुनिया में ज्योतिष फैलाना है। तो अभी नेक्स्ट 25 साल जो है वो ज्योतिष क्रांति के, हर घर ज्योतिषाचार्य, एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर। और फिर देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और वो सब चीजें कितनी इंप्रूव हो जाती है। तो नेक्स्ट 25 साल जो है वो ज्योतिष क्रांति के। तो अभी तो आप एक्सक्लूसिव हैं, तो जो पहले कर लेगा वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, फिर ये मास में चला जाएगा। आने वाले टाइम में मास में चला जाएगा, एकदम मास में चला जाएगा। फिर आपको तो ज्योतिष जो है ना वो छोटे तबकों के जगह में भी मिल जाएगा, जो जो छोटी जगह है वहां पर मिलेगा। इट विल टेक अनदर मे बी फ्यू इयर्स, बट हाँ नेक्स्ट 25 साल जो है 20 से 25 साल ज्योतिष क्रांति के हैं पूरी दुनिया में। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ आना है, 25 साल बाद आना है या अभी आना है? आपको एक्सक्लूसिव में बनना है या आपको भीड़ में आना है? तो आपकी चॉइस है। हाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए आप फीस इसकी है और फीस का डिटेल आपको सब मिल जाएगा उसमें, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। उसमें मैं थोड़ा कल तक शायद वो अपडेट कर दूंगा। अगर जिसको क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता है, ठीक है। और वो अगर किसी को फाइनेंस की दिक्कत है क्रेडिट कार्ड से पे करके अपना ईएमआई वगैरह करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना वो आराम से साल भर में पे करे, 2 साल में पे करे, उसके ऊपर है। जैसे हम होम लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो भाई पढ़ाई के लिए तो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। कोई एमबीबीएस करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो पढ़ाई के लिए तो हम कुछ करते हैं ना, तो ये पढ़ाई के लिए ही समझ लीजिए। और ये ऐसा देखिए, ये ऐसा नॉलेज है जो कि देखिए ना पैसा जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना प्रॉपर्टी जाएगी, पर आई टेल यू ये नॉलेज जाएगा आपकी, बिकॉज ये नॉलेज कॉन्शियस में चला जाता है। ज्योतिष का नॉलेज ना कॉन्शियस में चला जाता है, ये आपके साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेदों की पढ़ाई करते हैं ना, जो वेदों की पढ़ाई करते हैं, वेदांगों की पढ़ाई करते हैं, वो नॉलेज आपके साथ जाता है। कैसे? आपको अगर पता होगा, कई लोगों को बचपन से ही वेदों का नॉलेज होता है। कई लोग बचपन से ही सब पुराण गीता सब पढ़ने लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस में होता है। और मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, मैं आपके डीएनए में डाल देता हूँ ज्योतिष, ब्लड में डाल देता हूँ। तो पढ़ाता नहीं, मैं बिलीव करता हूँ कि आपके डीएनए में चला जाए ज्योतिष, आपकी कॉन्शियस में चला जाए। तो जब कॉन्शियस में जाता है तो वंश ज्योतिषाचार्य इज ऑलवेज ए ज्योतिषाचार्य। मैं तो ये देखा, मैं तो जब बना तब समझ में आया कि अरे यार ये तो बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब ऑब्वियसली माय फादर वाज एस्ट्रोलॉजर आल्सो एंड होम्योपैथिक डॉक्टर। तो हम बचपन से ही, मैंने पहली प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से 7 साल या 9 साल की उम्र में की थी, और वो गलती से या कैसे कह लीजिए वो सही हो गई। तो मेरे को तो डर लगता था ज्योतिष से कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें तो सब कुछ जो सोच देखो हो जाता है। बट देन later I realized no, it is helpful for the so my first prediction was at the age of 7 or 9 years. My father was an astrologer and used to do a lot of, so we sit besides. Yeah, it has to be no, it has to be, no, I'll tell you, not in DNA, I'll tell you, once an astrologer is always an astrologer. So what I'm saying you, I do, I believe that when you learn Jyotish, it has to go in your consciousness. It has to go in your DNA. So I teach with that intention and with that, whatever way you can say. Right? So once you are an astrologer, you are astrologer for the whole, unless you don't want to pursue in your next lifetime, that's okay. That is what I believe, because what I have seen is, what I have seen is, people
who are into this field are not new. They have learned. They if you ask them, are you new to this? No, no. They are like that is something there in the DNA. So, and I'm sure it must be there in your DNA, but you don't know. That's why your interest is there. So my call for admission in my classes or my Nadi astrology is simple. You have to be interested in learning astrology. It has to be deep rooted somewhere inside. If you are interested and if you are committed that, okay, you will attend all the classes, then you are more than welcome. Understand this? So I think a lot of time has gone. I hope I will be able to make you understand. Bhaiya, when we start the predicting for others, does it turn? No, no, no. You can write your question. I have muted it. Whatever question you have, you can write on the chat, then I'll unmute later. So the one question I said, no. So you will be able to do predictions within 2 to 3 months for others. Yeah. You will start doing that. But professionally, when you charge money, after 6 months only. After 2-3 months, you will start predicting. I think, honestly, if I say just after 2 classes, you start predicting. But then I give you time, because then you have to do some practice and all those things. So after 2 months, you start predicting, and then, start practicing more. And the same people will be shocked, like, your family, many of my students, as their views, their family got shocked. Oh, how can you learn such a good astrology in just 2 months, 3 months, or 6 months? They were like little, and all what they have shared was true and coming true. Because you can't even tell the present, even you can go to the past also. So if I don't know about anything and I'm opening a chart and telling you this time and this issues and this that issue, you definitely will be surprised that how this person, just by knowing date, time, place, know my past and predicting all the things, right? So I think 90% of astrologers do this mistake. They don't tell past, they just tell future. So we tell you how to check your past, check your present, then take your future. तो past, present, future तीनों हम सिखाते हैं, बताते हैं आपको. देखो, सारे एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, सारी टेक्निकें अच्छी हैं, हमें किसी को ऊपर नीचे नहीं बोलना है. दैट इज नॉट राइट. ठीक है. बट क्या है कि आपको भेद पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो कैसे पता चले. मैं ये बोलूं ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तो भाई फिर समझ गए ना. पर आपको डिफरेंस आप सब पता होना चाहिए, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या कमी. तो अगर प्रिडिक्शन सीखनी है, प्रिडिक्शन मतलब आपको बताना है कि भाई लाइफ में ये कब होगा, किधर होगा, कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगी, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे कुछ भी चीज है, रिलेशनशिप है, तो आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. आई टेल यू, मैंने बहुत साल बहुत रिसर्च की, बहुत पढ़ाई की, बहुत टाइम वेस्ट किया, चाहे वेस्ट किया, चाहे कह सकते एक्सपीरियंस हुआ. वेस्ट तो नहीं बोलते उसको, वेस्ट नहीं कह सकते. हर चीज से आपको लर्निंग मिलती है कि भाई सो देयर इज अ सेइंग ना कि मैं पास होने से पहले 100 बार फेल हुआ, राइट. तो 100 बार क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, 100 बार सीखा कि कैसे फेल नहीं हुआ जा सकता, राइट, समथिंग लाइक दैट. तो क्या है कि क्या क्या तरीकों से या फेल हुआ जा सकता है, किन 100 तरीकों से फेल हुआ जा सकता है. तो यू लर्न एवरी टाइम. तो स्लो लर्नर, देखिए मेरी क्लास में उनसे यंगर वन कितना होगा, 20-21 साल का होगा कोई ना कोई, और एल्डर वन 60-65 साल के भी हैं जिन्होंने सीख ली. तो आप कितने भी स्लो लर्नर हो, आपको 1 से लेकर 12 गिनती आती है, यू नो हाउ हिंदी या इंग्लिश आती है, तो आप सीख सकते हैं. और उसके कर्मा पे आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. भाई क्यों पड़ेगा कर्मा पे इम्पैक्ट? भाई आप ज्योतिष की जो कमाई आती है ना, देखो पहली बात तो किसी को लूटना नहीं है, किसी को डाका थोड़ी डालना है, किसी को लूटना नहीं. भाई किसी को डरा दिया, बोल दिया ये डरा दो, ये कर दो, ये पूजा करा दो, वो करा दो, 10-20-50 हज़ार ले ले, नहीं. आपको अपनी फीस लेनी है और आपको सत्य बताना है. हाँ, वो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो सब सिखाता हूँ. व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आई टीच इन द कोर्स. ठीक है. तो कर्मा और जो पैसा लगते हैं उसको आप सही जगह लगाते भी. ये नहीं कि सब पैसा लिए और सब पैसा अपना. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई जो आप अर्न करो उसका 20% तो आपको दान करना चाहिए, अगर आप फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हो तो.
अगर आप पार्ट टाइम हो तो मैं कहता हूँ 50% करो। अगर आपको लग रहा है कहीं आप और कमा रहे हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो 50% दान करो, क्या दिक्कत है? अच्छे काम में लगाओ, आपका पुण्य ही बढ़ेगा, आपका यश कीर्ति ही बढ़ेगा। ठीक है, हाँ जरूरत अपने लिए, अपनी जरूरत के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो करना चाहिए आइडियली। तो कोई ऐसा कर्मा वाली बात है ही नहीं। ठीक है, स्लो लर्नर तो चोरी कुंता है, उसको फास्ट बनाना मुझे आता है। सो जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप शायद आई थिंक asking question, can we just make a study of person chart and predict the good and bad periods of, हाँ without even asking question, yes, but क्या है, आपको पहले ना वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई क्या करना पड़ेगा? सपोज किसी का पर्सन का चार्ट है, तो आपने बोला कि आज सपोज क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो आपने पूछा कि यार जनवरी फरवरी में कुछ प्रॉब्लम थी क्या आपको, कुछ जॉब में या कुछ हेल्थ में इशू था क्या? वो बोले, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, तो वो वेरीफाई करने, वो वेरीफाई पॉइंट हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ जी हुआ था, अगर उसका टाइम ऑफ बर्थ सही होगा ना, बोलेगा हाँ हुआ था, मेरे जॉब में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था या एग्जैक्ट। अब जनवरी फरवरी क्यों बोला आपने इतने सारे महीनों में पिछले 1 साल में? क्योंकि वो जनवरी फरवरी दिखा रहा था, उस टाइम में गड़बड़ होगी। ऐसे आप बोलोगे कि आप पूछोगे हाँ यार ये पिछले साल जून जुलाई में भी कुछ गड़बड़ हुई थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये लगता है यहाँ पर वापस तुम्हारी जॉब में कुछ प्रॉब्लम थी, या तुम्हारी हेल्थ में, वट एवर बी द केस, जैसा नक्शा दिखा, या तुम्हारे हेल्थ में इश्यूज थे या रिलेशनशिप में इश्यूज थे, तो वो आपको दिख जाएगा, वो एनर्जी दिख जाएगी, आप पूछोगे वही क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं पूछा, आपने जस्ट वेरीफाई किया। अब एक दो इवेंट वेरीफाई हो गया, फिर तो आपकी पता, उसका आपकी सब सारी कुंडली आपके हाथ में, आप जो बोलोगे वो हाँ ही बोलेगा, और उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ इनको तो कुछ पता है, इनको तो जादू आता है, ये सारा सब सही सही बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो हमारे को है। तो ऐसा होता है, तो जादू कुछ नहीं होता, वो साइंस है सब। ठीक है, तो बिना आप पूछे आप डेफिनेटली सब कुछ बता सकते हैं, बट क्या है कि आपको डेफिनेटली वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। मैं वेरिफिकेशन बताता हूँ। कैन वी गिव रेमेडी? हाँ, रेमेडीज के बिना तो देख, मालिक बोलते हैं रेमेडी के बिना प्रेडिक्शन अधूरी है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप रेमेडी नहीं जानते तो प्रेडिक्शन देनी यूजलेस है। क्लास जो है 1 जुलाई से सैटरडे 7 AM स्टार्ट होगी, 7 to 9 AM मॉर्निंग का टाइम है ना, सब लोग कर लेते हैं, और यूएस वाले हैं, अलग टाइम जोन वाले हैं, वो भी कर लेंगे, उनके लिए भी आसान है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज, एंड द क्लास मीडियम इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश, बट अगर कोई हिंदी में है तो हिंदी में ही बोल देता हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश। स्लो लर्नर है भाई, अगर आती है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कल जो है उस वहां पर मैं वो क्रेडिट कार्ड का लिंक भी दे दूंगा। और अभी देखिए, अभी 23 तारीख है, वैसे तो 15 तारीख तक ऑप्शन था, अभी ये गोल्डन चांस लास्ट 2 दिन के लिए, 25 तारीख तक जो है इसमें 10% ऑफ चल रहा है। 90,000 इसकी फीस है, 10% ऑफ है, 81,000 जो है अभी है। मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप कर दीजिएगा, तो 81,000 का लिंक आ जाएगा, वहां पर लिखा रहेगा, उसके बाद वो 90,000 का लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप कर सकते हैं। मैंने एनीवन आस्क्ड क्वेश्चन, गुरुजी कैन वी गिव रेमेडीज? बिल्कुल है। तो मेरे को लगता है अगर आपकी इंटेंशन है ना, कभी लाइफ में सोचा है क्या मैं एस्ट्रोलॉजी सीख पाऊंगा, कर पाऊंगा, करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आई टेल यू, नहीं मिलेगा। अभी तो मैं लाइव सिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है इतना बिजी हो जाऊं कि वीडियो से सीखना पड़े। ठीक है, और लाइव का अलग बात होती है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो आई हैव टू ट्रैवल मोर देन 150 180 कंट्रीज व्हाटएवर, मेरे को तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करना और ज्योतिष सिखाना। तो अभी तो जूम पे सिखा रहा हूँ, फिर अलग अलग कंट्री में जाके अलग अलग लेवल पे भी सिखाना पड़ेगा। अगर मिशन लिया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप लोग फायदा उठा लीजिए। क्या बोला? 3100 चार्ट्स। आई सेड कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब ये आफ्टर दे फिनिश द 6 months कोर्स, द मिनिमम फीस दे चार्ज इज 3100 पर चार्ट। दैट इज व्हाट आई से, इतना मिनिमम चार्ज करो, एंड फॉर दैट आई प्रिपेयर फ्रॉम द सेकंड मंथ्स ओनली ऑनवर्ड्स। मैं आपको शुरू से ही उसका प्रिपेयर करने लग जाता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। बट देन देखिए, ये स्किल ना, ये ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को पैसे कमाने हैं इसलिए मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, एटीट्यूड कौन सा रहेगा? सेवा का। पैसे तो अपने आप आएंगे, लोग पैसे आपको रख के जाएंगे, मैं कह रहा हूँ।
आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे ना, लोग तो पैसे रख के जाएंगे आपके चरणों में, आपके हाथ में। ठीक है, तो एटीट्यूड सेवा को आना चाहिए, पैसा तो अपने आप आएगा। ये लाइन ऐसी है क्योंकि ये ग्रेस और ग्रेटफुलनेस की लाइन है। ठीक है, तो जो आ रहा है वो किसी मुसीबत में है तब आ रहा है आपके पास, but the person who is coming is in some very big problem. So you have to be grateful and you have an attitude of seva, then you can be really successful. You know, so many times people come to me and say, I don't have money, I don't have job, so I find some other way to help them. I do help them. I don't want anybody to go empty hand from my side, and obviously I don't want people to cheat me as well and make sure or take advantage why they will cheat. But yeah, but sometimes people are few are little smart, but then it's okay. As soon as I open chart, everybody, I know all the smartness of everyone, so nothing is hidden from me. You know who is smart, who is. So I would say this key, if you have a, and this is a line of misery. Like there are two three profession which is a line of misery. What? Doctors? Doctor is a line of misery. Astrologer, line of misery. Huh? Lawyers, a line of misery. Why line of misery? Only miserable people will come to you. 90%. So if you have a patience कि आप दूसरों का दुख सुन पाए, क्योंकि सुनना पड़ेगा और पेट में बचाना पड़ेगा. You know, मालिक बोलते हैं एक हाथ से सुनो, दूसरे हाथ कोई पता ना चले. Hear from one hand and other hand should also not know. So you have to digest. Many people can come to you, and you might get shocked. Oh, और अच्छे इसकी लाइफ में तो, अरे दूसरे में तो बहुत अच्छा लगता था, पर अभी तो उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है. ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है. तो you have a digestion and then you have to have a patience to listen. पेशेंस होना चाहिए कि मैं उस आदमी की प्रॉब्लम को समझूं और पूरा समझ के उसको सोल्यूशन दूं. ठीक है, आई थिंक बहुत हो गया टाइम. अभी टाइम 1 घंटा हो गया. वी हैव क्रॉस द टाइम ऑफ द लिमिट, सो आई वुड एंड माय टॉक हियर ओनली. एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ चीजें हैं, तो यू कैन अनम्यूट एंड आल्सो आस्क. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. और आप करिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है. इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा. और गुरु पूर्णिमा में शुरू हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या मिलेगा. एक नई विद्या, एक नया वेदांग आप गुरु पूर्णिमा के टाइम से शुरू हो रहा है, तो आप लोग सीखिए. बताइए, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करिए और मुझसे पूछ लीजिए. If you have any question, you can ask me. I can unmute and ask me as well. Otherwise, if all your questions are answered, then it is okay. नीचे 5 है. Let me check the messages also if I missed. Sir, when you will make the group of registered participants? अब वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन में बनाएंगे. ठीक है, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं बना लो. आई हैव नोटेड ऑल द टाइम, वो और इन अलग हैं, तो मिल जाएगा. इज एसबीसी इज अ पार्ट ऑफ नाड़ी and you're teaching using Lahiri, Raman, KP और San. So देखिए, लहरी अलग आयनामशा है, रमन अलग है, केपी अलग है, तो क्या ये नाड़ी आयनामशा लगेगा इसमें. नाड़ी आयनामशा, टाइम करेक्शन वगैरह जो है, ये सब हम सिखाएंगे इसमें. We'll teach all the time corrections and everything. Many people have enrolled and take benefit of what is the going on inaugural offer. So good है, आप लोग सीख जाएंगे. देखो, I have a student. Maybe soon I'll share many testimonials on Insta. Maybe upload. I'll share one now in the group only. You will see किसी को कुछ नहीं आता था, जीरो थे, जीरो. एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता था. आई एम श्योर यहाँ पर तो बहुत लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने बेसिक पढ़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी का काफी कुछ पढ़ा हुआ है. लोगों को जीरो आता था, 0/0. They have become like expert in just 6 months. या अनबिलीवेबल है, बिलीव नहीं होता लोगों को, क्योंकि लोगों ने तो ऐसा हवा बना रखा है ना एस्ट्रोलॉजी. अरे 1 जन्म लगेगा, 10 जन्म लगेगा इसको सीखने में, 10 साल लगेंगे, 20 साल में. बिल्कुल नहीं, 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाओगे. दैट इज अ मिथ आई वांट टू ब्रेक एंड आई ऑलरेडी ब्रोकन इट. लोग बोलते थे 20 साल लगेगा, 10 साल लगेगा प्रेडिक्शन को मास्टरी करने में.
मेरे को शुरू से लगता था ऐसा नहीं हो सकता, इट्स बीन प्रूव्ड। अब तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, शुरू में कन्विंस करने में दिक्कत होती थी, अरे नहीं सीख जाओगे करोगे, अभी तो इतनी सारी केस स्टडीज हैं। ठीक है जी। हाँ, और कोई बात, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं? तो चलिए, आपको बहुत है, मैं ये कहूँगा कि आप अगर करेंगे तो आपको ये विद्या आएगी और आप अच्छा कर पाएंगे। इसका मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर तो आपको बना दूंगा एक बढ़िया 85 to 90% वाला, उसका एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ। बाकी आपकी तरफ से मुझे यही कमिटमेंट चाहिए दैट यू विल अटेंड द क्लास रेगुलरली, जो बताऊंगा वो समझेंगे। चलिए, वीडियो ऑन करके शक्ल तो दिखा दीजिए, सबकी शक्लें ऑफ है, हैं? मेरे को याद तो रहेगा कौन कौन है। नहीं, रंजीत जी को तो मैंने देखा, जय गुरुदेव वेरी गुड, अरे भाविका भी है, वेरी नाइस, ओहो जय गुरुदेव वेरी गुड, मंजू जी अरे वाह, ध्रुव वेरी नाइस, रवि जी, मंगला जी अरे वाह, स्वाति वेरी नाइस। हाँ भैया, देखो शक्ल दिखा देगा तो मैं भी याद रखूंगा ना। वेरी गुड वेरी गुड, तो करो, इट्स वैल्यू, वॉट एवर मनी यू आर गिविंग यू विल गेट वर्थ ऑफ इट। तो ऐसा मत सोचो कि ये ज़्यादा है कम है, ये तो बढ़ता चला जाएगा और इसका डिमांड भी बढ़ता चला जाएगा। आप जितनी जल्दी पार्टिसिपेट कर लेंगे उतना अच्छा। ठीक है, माधवी जी वेरी नाइस, अनीता जी, रवि जी वेरी गुड, सुकांता, सीखिए सीखिए, बहुत अच्छा है। और हमने तो देखा है दुनिया में सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सीखते हैं, और सब लोग यहीं आते हैं और यहाँ सीखते हैं फिर। ठीक है, हमारे पास तो बहुत सा एग्जाम्पल, देखो हम किसी को बुरा अच्छा नहीं बोलते, सब अच्छे हमारी तरफ से। तो भाई अगर वो नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाने लग जाएंगे सब नाड़ी, तो हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा? तो अच्छा है वो पढ़ाते हैं, वैदिक पढ़ाते रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये ना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, बस मैं इतना बोलूंगा एक वन वर्ड में, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। इसके बाद अगर कोई प्रिडिक्शन कर सकता है ना, तो भगवान ही कर सकते हैं बस, इंसान नहीं कर सकता, बिकॉज ये इतना परफेक्शन में चला जाता है। इसके बाद अगर कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो भगवान ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मतलब यू विल बी अमेज्ड कि अगर जब आप परफेक्शन में जाएंगे ना, देखिए आप तो इतने हजारों लाखों चार्ट देख ली, तो आप यू कैन प्रिसाइसली पॉइंट आउट द डे एंड आवर ऑल्सो, इतना प्रिसाइज है। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, पर हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते। आप मेरी ट्विटर प्रेडिक्शन देखिए, कईयों का तो इवेंट का मैंने डेट भी लिखा हुआ है, इस डेट में होगा। ठीक है, जैसे रशिया वॉर है, मैंने डेट लिख दिया था उसका। फिर फिर बहुत सारी हैं ट्विटर, देखो कोरोना का अगर आप देखोगे तो बहुत कम, शायद 2-4 एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने लिखा था कि 2 साल चलेगा ये कोरोना। सब बोलते थे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में चला जाएगा। हमने उसी टाइम बोल दिया, मई 2020 का ट्वीट है, जनवरी में हमने बोल दिया था कि 2 साल से पहले नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत सारी चीजें, और ऐसा आप सब कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन लोगों के लिए तो कर ही सकते हैं, प्लस ऐसा मंडेन प्रेडिक्शन देश दुनिया के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स नक्षत्र का बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिल जाएगा, और ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी। ये सोचिए कि भाई हमें कुछ कमी रह जाएगी, हम कुछ नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे आप। आपको वैदिक में इंटरेस्ट है वो भी सिखा देंगे, क्योंकि क्या है, जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर लेते ना, तो मन रुकता नहीं है, समझ में नहीं आता, मन बड़ा व्याकुल रहता है। तो आपको सब सीखने को मिलेगा, और हमारा फोकस होगा नाड़ी। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? अच्छा लगा? हाउ इज द टॉक? यू फाइंड इट यूजफुल, बेनिफिशियल? गुड, चलो आई एम हैप्पी। ठीक है, गुड गुड रितेश, वेरी नाइस। चलिए, गुड गुड, थैंक यू। ओके चंद्रू, भाविका, एवरीवन, गुड, जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव, बाय बाय, जय गुरुदेव।